Hello students, today we are going to discuss question number 3, 5, 3, 5, 8, 13. Okay, in this session. So first I can say the question number 5. The question number 5 in the exercise 1 is the vapor pressure of a two pure liquids A and B that from an ideal solution are 100 and 900 torr respectively. Means these two are the vapor pressure of A and B. At temperature T, this liquid solution A and B is composed of 1 mole of A and 1 mole of B. What will be the pressure when 1 mole of mixture has been vaporized? First of all, what I can say, first I thought another method, but the simplest method is that first A and B, two are there, their vapor pressure. So both are volatile. So you can use the Raoult's law for a volatile solute. Okay, and mole for both the liquids are also given. So we can use two formula. One is the Dalton's formula and another one is the Raoult's formula. What is the Dalton's formula and where we can apply the Dalton's law? Total pressure of a gaseous mixture is the sum of partial pressure. So P total is equal to PA plus PB is the formula. And we need a partial pressure. If we have the partial pressure of A and B, then we can apply this formula. Even this formula is just for the gaseous component. But in a question, see this liquid solution. So for a liquid solution, we can use the Raoult's law. So be clear with your mind where to apply the formula. Okay, so vapor pressure of solvent is directly proportional to mole fraction. And if we cancel this proportionality, we need to use a constant for that pure solvent. Okay, that is nothing but P naught A. Now, vapor pressure of pure A is 100 and pure B is 900 torr. Now, mole of first component is 1, mole of second component is 2. So mole fraction of A is 1 upon total mole and mole fraction of B you can find 1 minus XA. And this is your P total क्योंकि आपको mixture के लिए पूछा गया है. Mixture contains a 1 mole, PA plus PB, P naught A into XA, P naught B into XA. 100 multiply by half, 900 multiply by half. 100 divided by half is 50, 900 divided by 2 is 450. So your answer is 500 torr. Okay, so let's discuss your third question. So see the question number 3 first. Your question number 3 is two liquids X and Y are perfectly immiscible. If X and Y has a molar mass ratio is already given. Total vapor pressure of a mixture X and Y prepared in a weight ratio 2:3. Listen students, molar mass ratio, weight ratio and P naught X, P naught Y, these are given in the question. And now, and definitely P total is your question. P total is what? P naught X plus P naught Y. Okay, remaining you don't need to worry about that. So definitely P naught X is 400 and P naught Y is 200. Because your mixture contains two liquids only. Immiscible means what? ये जो नीचे का लिक्विड है वो A है, ये ऊपर का लिक्विड है वो B है. दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो सेपरेटली यू कैन से दिस इज योर P naught A and this is your P naught B. तो सॉरी X एंड Y सिंबल यूज किए तो X एंड Y यूज कर लेते हैं. तो P टोटल किसके बराबर होगा? ये दोनों के इक्वल होगा. ठीक है, चलो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is what? The vapor pressure of the solution of two liquids. For a A it is 80, for a B it is 120 is found to be 100 mm. When XA is 0.4, the result shows that first, if XA is 0.4, XB will be 0.6, P naught A is given, P naught B is given, you can calculate this. P theoretical value is 104 by using this method. Practically it is given that the value is 100 mm, experimental value. Now think that theoretically हम सोच रहे हैं कि 104 आना चाहिए,
मगर जब एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया है कि वो 100 ही आ रहा है, मीन्स कि थ्योरेटिकल वैल्यू से वो लेस आ रहा है, थ्योरेटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो वो हमें दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। अगर इससे अपोजिट आ रहा है कि थ्योरेटिकल जो हमने कैलकुलेशन कर ली है उससे हमारी एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशन करने वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो वी कैन से दैट अ पॉजिटिव डेविएशन। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 is your next query. The vapor pressure, just a second, the vapor pressure of a solution of a non-volatile solute B in a solvent A is 95% of the vapor pressure of the solvent at the same temperature. If the molecular weight of the solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, what is the ratio of weight of the solvent? बहुत ही easy question है, सिर्फ क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्वेश्चन दे हैव नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, ये वर्ड को पकड़ लो, ये वर्ड पता चल जाए तो डेफिनेटली दिस इज द फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, ओके, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। सो 100 माइनस 95 अपॉन 95 इज इक्वल टू N2 के लिए हम W2 अपॉन क्या यूज कर सकते हैं, W2 अपॉन M2, और ये W1 अपॉन M1, ठीक है। अभी आपके पास क्या गिवन है, मोलर रेशियो इज गिवन 0.3, ये वैल्यू भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो 100 माइनस 95 इज 5, so 5 upon 95, molar ratio is 0.3, so you can find the weight ratio. weight ratio calculate करना है, 5 को यहाँ पे रहने दो, 0.3 नीचे आएगा तो 3 upon 10, 10 ऊपर चला जाएगा, and you will get the answer 5.7. that is your option B. Let's go for question number 14. If P naught and P are the vapor pressure of a solvent and its solution respectively, that is N1 and N2 are the mole fraction of the solvent and non-volatile solute, then correct relation is, listen, the non-volatile solute, then this is the formula, instead of X for a mole fraction we have to use symbol N, for solute के लिए तो N2 यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारी फॉर्मूला है, अरे ऑप्शन जो है वो आप देख लो, तो P नॉट मल्टीप्लाई बाई N2, ये आपका ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, P नॉट माइनस पी एस, ठीक है। सॉरी नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा अभी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मुझे क्या करेंगे हम, P नॉट माइनस P नॉट N2 इज इक्वल टू पी एस, P नॉट कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस N2 इज इक्वल टू पी एस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन पी एस की जगह पे यहाँ पे P गिवन है, तो P नॉट माइनस P नॉट N2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन है कि सी वाटर इज फाउंड टू हैव 5.85 NaCl, 9.50 MgCl टू बाई वेट, मीन्स परसेंटेज W बाई W। तो ये सॉल्वेंट वाटर है, दैट इज सी वाटर, उसके अंदर 2 सल्यूट प्रेजेंट है। कैलकुलेट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, 100% NaCl का आयोनाइजेशन हो रहा है और 50% MgCl2 का आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और Kb जो है वाटर का वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हम क्या कर लेंगे पहले, ओके, तो पहले हम NaCl की मोल निकाल लेते हैं। तो NaCl के लिए 23 प्लस 35.5 इट इज हाउ मच, 58.5, तो यहाँ पे आपके मोल आ जाएंगे 0.1। सिमिलरली आप MgCl2 के भी मोल निकाल लीजिए, तो MgCl2 का वेट कितना है, 9.50, और Mg24 प्लस 71 इज ऑल्सो 95, सो दिस मोल इज ऑल्सो 0.1, ठीक है। अभी NaCl को आपको डिसोसिएट करना है किसके अंदर,
Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर. एज्यूम दैट इनिशियली इट इज अ 0.1 मोल. प्रोडक्ट T इज इक्वल टू 0 पे बना नहीं है आपका, तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो NaCl का डिसोसिएशन गिवन है 50%, तो अभी आपको 50% प्रोडक्ट जो है वो मिली होगी. ठीक है, 0.05. 50% मीन्स एक्चुअली 50/100, तो 0.5, मगर 0.5 को हम 0.1 मीन्स ये अल्फा सी है. अल्फा आपका आ गया 0.5 और ये आपका आ गया 0.1, तो टोटल मिला कि ये 0.05 आने वाला है. ठीक है, चलो तो एन यहाँ पे पहले तो ये अपने NaCl का काम कर लिया. ठीक है, ये आप क्या कर लेंगे, 0.1 माइनस 0.05 कर लेंगे ना, डिसोसिएशन के बाद रिएक्टेंट है तो. चलो और काम करेंगे सेम हम MgCl2 के लिए. ठीक है, MgCl2 का डिसोसिएशन क्या होगा, तो MgCl2 के डिसोसिएशन के लिए पहले तो आपको पता ही है हम क्या करेंगे, Mg प्लस 2 प्लस ट्वाइस Cl माइनस. Mg का भी इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी मोल है, वो 0.1 है. यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया है ये. ठीक है, सो प्रोडक्ट पहले तो बनी नहीं है. बाद में Mg का आयोनाइजेशन दिखाया गया है 80%. So alpha into C, alpha is 0.8 multiplied by 0.1, 0.8 multiplied by 0.1 is 0.08, 0.08 multiplied by 2. ठीक है, 0.1 माइनस 0.08. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, टोटल मोल निकालने हैं. NT इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले तो बोल दो, हाँ, टोटल मोल ये 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.1 इट इज 0.2. ठीक है, इसमें से ये सारी पहले तो 0, जस्ट अ सेकेंड एक काम करते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं. प्लस 0.5 0.5, उसके बाद प्लस 0.08 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो वापस से मैं 0.08 लिख रही हूँ, माइनस 0.08 माइनस 0.05. तो ये एक प्लस माइनस कैंसल, ये एक प्लस और माइनस कैंसल. ठीक है, अभी बाकी आपको क्या करना है, सम करना है. तो ये कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 0.46. अभी आपको मोल पता चल गए, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई मोलालिटी वाली फॉर्मूला हम लगा लेंगे. ठीक है, KB तो आपको पता है 0.512, मोलालिटी में वेट ऑफ सोल्यूट लिखते हैं अपॉन मोलर मास, तो उसके अलावा हम मोल लिख लेते हैं डायरेक्टली, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं ना. ठीक है, तो मोल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 0.46. ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 84.65. ओके, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.0028. अभी बात करते हैं कि अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे बॉइलिंग पॉइंट लिखना होगा सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट तो वाटर है यहाँ पे, प्लस मुझे क्या करना होगा सल्यूट का, तो सल्यूट का है वो डेल्टा TB है. ठीक है, ये आपका 100 है, प्लस 0.0028 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वो आप कैलकुलेशन खुद से ही कर लेना और नियर बाय आंसर आप फाइंड कर लेना. ठीक है, ओके. तो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 3, 5, 8, 13, 14 and 17. So next we are going to discuss question number 20, then 25 and 30. Okay. So query question number 20, which of the following has been arranged in a decreasing order of freezing point? So students, this is nothing but molality only. आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मोलारिटी ना हो. ठीक है, कोई बात नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि हायर वैल्यू विल बी फर्स्ट,
वैसे आप डिक्रीज के ऑर्डर में लिखते जाना। तो डेल्टा टी एफ जो है वो आपका m मल्टीप्लाई बाई के एफ मल्टीप्लाई बाई आई होगा, ठीक है। ये तो आपका कांस्टेंट है, उस पर मत जाइए, आप ये और ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अभी KNO3 है तो उसके लिए m 0.05 ले ले, K प्लस एंड NO3 माइनस, सो 2 आयन, सो मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले, 0.10 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप CaCl2 के लिए करेंगे तो 0.04 मल्टीप्लाई बाई Ca प्लस 2 एंड ट्वाइस Cl माइनस, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इट इज़ 0.12। उसके बाद थर्ड आपका आएगा शुगर। तो शुगर के लिए आपकी आई की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा 0.140 ओनली फॉर अ शुगर। दिस इज फॉर CaCl2 एंड दिस इज फॉर KNO3, ठीक है। और अब हम लिखते जाएंगे CuSO4 के लिए, तो Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, so 0.075 multiply by 2. So can you tell me what it is? 0.15. 0.15. So you can say that which is the highest value? Which is the highest value? Okay. तो अभी सोचने की बात यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किया गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अपोजिट है डेल्टा टी एफ से। क्यों? क्योंकि हमारी फार्मूला क्या रहती है? हमारी फार्मूला टी एफ फॉर सोल्यूशन जो है उसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट जो होता है उससे डेल्टा टी एफ को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। टी नॉट एफ माइनस टी एफ, सॉल्वेंट से टेम्परेचर फ्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, तो ये तो सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो डेफिनेटली इसकी बात की जाए तो इससे वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो अभी डेल्टा टी एफ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मीन्स कि हाईएस्ट किसका है डेल्टा टी एफ? CaSO4, तो लोवेस्ट वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। ऐसे आप लिखते जाओ, फिर ये है तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो आप इसके लिए। ओके, सो 25 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि अगर आपको वेट ऐसे फाइंड करना है रेशियो के अंदर तो वो P0A अपॉन P0B मल्टीप्लाई बाय MA अपॉन MB ये रेशियो के अंदर होगा। ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं P0A की। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये 7.7 जस्ट अ सेकेंड 25 नंबर 7.7 इंटू 10⁴ पास्कल अंडर अ रिड्यूस प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो डिफरेंस क्या आएगा? 7.7 माइनस 7 दैट इज 7, अरे सॉरी 0.7, ठीक है। तो पहले तो मैं P0A लिख देती हूँ 0.7, उसके बाद ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और वाटर की बात कर ली है तो क्लोरोबेंजीन का आप फाइंड कर सकते हो मोलर मास दैट इज 112.5 एंड वाटर का जो मोलर मास है वो आएगा आपका 18, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.625। भी आपको तो वेट परसेंट फाइंड करना था तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम WA इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? WA इज इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाई बाई WB, ठीक है। वेट परसेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के लिए आपने A सिंबल यूज किया था। वापस से मैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको एक बार बता देती हूँ। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है क्लोरीन से, तो ये 12 6 72 प्लस 5 प्लस 30 5.5 इट विल बी 112.5, ठीक है। अभी मुझे क्लोरोबेंजीन का वेट परसेंट फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना होगा? क्लोरोबेंजीन का वेट मीन्स मैं WA लिख लेती हूँ अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100। So instead of WA, what I can write 0.625 WB upon what I can write instead of WA 0.625 into WB plus WB. So WB will be common 0.625 WB upon WB in bracket WB in bracket 0.625 plus 1, ठीक है।
So it is nothing but 0.625 upon 1.625. WB cancel. ठीक है, multiply by 100. So this will be nothing but 38.46%. Your next query is question number 30. Consider two liquids A and B having pure vapor pressure P naught A and P naught B, forming an ideal solution. The plot of 1 upon XA versus 1 upon YA, okay, is linear with a slope and y-intercepts respectively. See the options and let's discuss its solution. Okay, so first of all, of 30, if I assume P dash A is equal to P naught A into XA and P dash B is equal to P naught B XB. Okay, and P dash A is equal to PM into YA and P dash B is equal to PM into YB. If you will solve this two, because this is equation 1 and 2, left side is same, so if you will solve right side, then you will get P dash A upon YA is equal to P dash A upon YA is equal to P dash B upon YB. So instead of P dash A, we can use this formula P naught A XA. P naught A XA upon YA, ठीक है, is equal to P dash P की जगह पे यूज कर सकते हैं P naught B XB upon YB. ठीक है, अभी आपको पता ही है कि हम XB की जगह पे ले सकते हैं 1 माइनस XA. ठीक है, और YB की जगह पे हम ले सकते हैं 1 माइनस XA, अरे सॉरी 1 माइनस YA. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो वाली टर्म है 1 माइनस YA को यहाँ पे लेके आ जाएंगे P नॉट एक्स ए अपन YA के साथ, तो आएगा P नॉट A एक्स ए अपॉन YA. ठीक है, 1 माइनस YA इज इक्वल टू P नॉट B इन ब्रैकेट 1 माइनस XA. इसको सॉल्व करेंगे तो P नॉट B इंटू 1 P नॉट B माइनस P नॉट B इंटू XA. ठीक है, चलो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे P नॉट A इन ब्रैकेट 1 माइनस YA अपॉन YA इज इक्वल टू, यहाँ पे XA जो है इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे P नॉट B 1 माइनस, ये बाद में करेंगे, XA अपॉन ये XA वाली टर्म को यहाँ पे लेके आ जाएंगे. ठीक है, अभी सॉल्व करता है दोनों साइड तो इजी रहेगा आपके लिए. P नॉट A इंटू 1 P नॉट A माइनस P नॉट A YA, तो YA नीचे है तो दोनों के साथ आएगा ये YA. यहाँ पे YA कैंसिल होके P नॉट A अपॉन YA माइनस P नॉट A आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप करोगे P नॉट B माइनस P नॉट B और ये क्या है XA. ठीक है, तो XA करेंगे तो ये आपका आ जाएगा P नॉट B अपॉन XA माइनस XA कैंसल, दिस इज P नॉट B, सॉरी. ठीक है, ओके. मुझे ये जो है 1 अपॉन, एक काम करती हूँ, जस्ट सेकेंड, कॉमन लेके भी कर सकते हैं. Let's discuss question number 33. Relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution containing 2 moles of this and 3 moles of water. ठीक है, तो 2 मोल आप सल्यूट समझ लीजिए, 3 मोल उसका सॉल्वेंट के समझ लीजिए, और उसका रिलेटिव लोअरिंग जो है वो 0.50 आ रहा है. नाउ यू आर रिएक्टिंग विथ AgNO3 एंड दिस सोल्यूशन विल फॉर्म ब्लैंक. ओके, पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि हमारा सब्सटेंस क्या है. CuNH3 3Cl, ओके, ब्रैकेट ओवर एंड Cl.
Now once you will dissociate this, you will get CuNH3 thrice Cl. ये तो ब्रैकेट के अंदर है, वो डिसोसिएट नहीं होगा. जो ब्रैकेट के बाहर है, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे आपका डिसोसिएशन होगा. अभी आप उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा रहे हो, तो डेफिनेटली ये Ag प्लस एंड NO3 माइनस, दिस टू विल फॉर्म AgCl. तो AgCl तो फॉर्म होने वाला है, मगर AgCl जो फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल, 0.25, 0.5 या फिर 0.40, वो हमें फाइंड करना होगा. पहले तो रिलेटिव लोअरिंग मीन्स व्हाट, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ठीक है, ये वह जो है वो आपको 0.50 गिवन है क्वेश्चन के अंदर. अभी यहाँ पे हमें आई टर्म इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, कितना आयोनाइजेशन हुआ है हमें पता नहीं है, तो N2 के साथ आई टर्म इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, नीचे हम कर लेंगे N1. तो आपका पहले तो ये बता दो कि आपका ये सॉरी मोल फ्रैक्शन है, तो N2/N1 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 0.50 लिख लेते हैं. और यहाँ पे आपका N2I क्या फॉर्म होने वाला है. N2 किसके लिए हम लेते हैं, वो हम लेते हैं सल्यूट के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा 2I. ठीक है, यस, और सॉरी ये N1 प्लस N2I. तो ये तो आपका 2I है, यहाँ पे भी आपका 2I आ जाएगा. और N1 सॉल्वेंट के मोल जो है वो 3 है. ठीक है, तो अभी आप यहाँ से I निकाल लीजिए. 0.15 ब्रैकेट 3 प्लस 2I इज इक्वल टू 2I. 3 मल्टीप्लाई बाई 0.50 इज 1.5. 2 मल्टीप्लाई बाई 0.50 इज 1I इज इक्वल टू 2I. I यहाँ पे लेके जाएंगे तो I की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 1.5. ठीक है, अभी हम I तो फाइंड कर चुके हैं. दूसरी बात हम कर लेते हैं कि चलो ये जो फॉर्म हुआ, इनिशियल देख लेते कि 1 है, प्रोडक्ट तो डैश आ जाएगी, उसके बाद 1 माइनस 0.5 जो I है, तो 0.5 यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगी और 0.5 जितनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो चुकी होगी. तो समझो कि इसमें से 0.5 कम हुआ है, तो मोल 0.5 जो है वो बड़े है. ठीक है, अभी बात करनी ये है कि अगर ये 1 मोल होता, 1 मोल होता, ठीक है, तो ये चीज़ हुई है. मगर यहाँ पे कितने मोल गिवन है, हमारे पास इसके मोल गिवन है, दैट इज 2. ठीक है, अगर 1 मोल से 0.5 बन रहा है, तो 2 मोल से 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स कि 1 मोल AgCl जो है वो फॉर्म होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, मीन्स ये 0.5 जो आया है हमारा, उसका मीनिंग क्या हो रहा है. 0.5 का मतलब ये है, ये 0.5 जो आया ना हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 में से सब्सट्रैक्ट करके, तो 0.5 प्रोडक्ट मिली, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100, 50% आयोनाइजेशन इसका हो चुका है, ऐसे हम समझ सकते हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट योर क्वेरी इज नथिंग बट 36. So question number 36 is 2 beaker, one containing 20 ml and of a 0.05 molar aqueous solution of a non-volatile, non-electrolyte and the other the same volume of 0.03 molar aqueous solution of NaCl are placed side by side in a closed enclosure. What are the volumes in the two beakers when equation is attached? Volume of the solution in the first and second beakers are respectively. तो बच्चों ठीक से क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. पहले तो 2 बीकर, क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी देखते जाना है. 36 2 बीकर है, यहाँ पे मैंने 20 ml लिया, 0.05 मोलर. ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे सेम वॉल्यूम मीन्स 20 ml, बट
0.03 मोलार। ओके, ये जो है वो है आपका NaCl, और ये क्या है वो हम फाइंड कर लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो इस हिसाब से तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, ये मोलारिटी है कि 1000 ml contains 0.05 mole. So 20 ml contains how much? 0.05 multiply by 20 upon 1000. So 5 upon 100 multiply by 20. That is 5 upon 1000 multiply by 20. 5 2s are 10. So 1 upon 10 it is 0.1 only. ठीक है, चलो सिमिलरली we can calculate for this, जैसे कि 1000 ml contains 0.03 मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों? यहाँ पे डिसोसिएशन होगा Na+Cl- में, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो दैट इज नॉन डिसोसिएबल। सो 20 ml contains हाउ मच? 0.03 multiply by 2 multiply by 20 upon 1000. Okay, so this is nothing but 3 upon 100 we can say. 0 0 cancel. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 3s are 12. 12 upon 1 2 3 4, so 0.012. Okay, सॉरी 0.0012। अरे यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 100 करना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे 100 डिवाइड कर लेते हैं, 0.001। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका यहाँ तक की बात है, तो बीकर 1 था, ये बीकर 2 है। तो अभी क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीकर 2 इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीकर 1। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होने वाली है, तो मूवमेंट जो है वो 1 से 2 की ओर होगी। कब तक ये मूवमेंट होगी? जब तक ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक। समझ में आई ना बात? यहाँ से यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जब तक दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रही है, तो 1 में से वॉल्यूम कम होगा और 2 में वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो 0.001 20 जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम करते जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, माइनस भी लिख लेती हूँ। 0.0012 है, उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना यहाँ पे कम हो रहा है उतना ही यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, ये पूरी टर्म को यहाँ पे लेके आइए और ये जो पूरी टर्म है इसको यहाँ पे लेके जाइए। ठीक है, बाद में यू सॉल्व, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V। V मिलने के बाद आप फर्स्ट बीकर की जो फॉर्मूला है उसमें से 20 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको फर्स्ट बीकर के अंदर वॉल्यूम कितना बचा है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप सेकेंड बीकर है उसमें 20 के ऊपर वो जो V का आंसर है वो प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सेकेंड बीकर के वॉल्यूम का भी आंसर, तो V का आंसर आपका 1.8 आने वाला है। यहाँ पे मैं 1.8 सब्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बोलिए? 18.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21.8। तो योर आंसर इज बी। 42 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 42 क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि अवेलेबल आर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaCl and 2 liter of 0.2 molar CaCl to solution. Using only these two solutions, what maximum volume of a solution can be prepared having 0.34 mole exactly? Both are having Cl. First think that. ठीक है, तो पहले आप M1V1 इज प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV लगा सकते हो। तो व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप ये तो NaCl के लिए ले लीजिए, ये CaCl2 के लिए आप ले लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि 0.1 और यहाँ इसके लिए x ले लेती हूँ। ये कितना लेना है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 लीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये तो क्या था कि 0.1 मोलार एंड 1 लीटर, उसका कितना लेना है पता नहीं है। ये 0.2 मोलार एंड 2 लीटर, सो 0.5 आई लिख लेते हैं। ये मुझे चाहिए 0.34, तो वॉल्यूम मेरा x प्लस वाई जितना होगा। जिसने क्लोराइड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है सिर्फ वो काउंट करना है, ठीक है। दूसरी बात की क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो NaCl के अंदर एक क्लोरीन है, तो 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। मोलारिटी इसकी 2 है, तो आप Cl 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगी। सही, ठीक है। अभी मुझे ये सॉल्व करना होगा। मुझे x और y के टर्म्स में आंसर भी मिल जाएगा। 0.1x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 0.34x प्लस 0.34y। सो 0.1x minus 0.34x is equal to 0.4y, sorry, minus 0.4y minus 0.34y, सॉरी प्लस 0.34y। तो ये सॉल्व करने से y की वैल्यू जो है वो हमारी आने वाली है 4x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x अगर हम हाफ गैस कर ले, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, y वैल्यू विल बी 2। दोनों को मिला के फाइंड करना है, तो y is 2 and x is half, so you will get 2.5। इसको क्यों हाफ करना है, तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। देखिए आप, ये 2 लीटर है तो उसके सामने ये 1 लीटर है, मीन्स कि x वाला जो है वो y वाले से हाफ लेना है, ठीक है। चलो, और ये इक्वेशन में रखना है आपको। Let's discuss question number 48. Insulin has a formula C2H10O5, is dissolved in a suitable solvent, and the osmotic pressure pi of the solution of various concentration in a kilogram per meter cube is measured at 20 degrees Celsius. The slope of a plot of pi against C is found to be 8.134 into 10 raised to minus 3 SI units. The molecular weight of the insulin in a kg per mole is. Okay, so let's discuss its solution. First I can say pi v is equal to nRT, pi is equal to n by v RT, pi is equal to CRT. C is nothing but mole per liter. Instead of this we can take kilogram per meter cube also, ठीक है। So here even we can write pi by C is equal to RT by M, okay, and M is equal to RT by pi upon C, okay. Now pi upon C is given as 8.314 into 10 raised to minus 3, fine. R we can take 8.314 into 293 upon 8.314 into 10 raised to minus 3. This will get cancelled. So your answer is 293 multiplied by 10 raised to 3. So pi by C value is indirectly given. How? The slope of plot of pi against C means this is nothing but pi upon C value. टेम्परेचर इज 20 गिवन, ओके। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ ही चुके हैं, मगर क्या होता है कि क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट में से कैसे आ रहे हैं वो बहुत ही मेन चीज़ है, कि वो नहीं सॉल्व किया ना तो फिर पता ही नहीं चलेगा, या फिर आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि टीचर ने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर करवाते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। डेफिनेटली नहीं पता चले तो टीचर्स आर देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज डेफिनेटली, मगर आप कॉपी कर रहे हो, वापस से एक बार आपको बोल रही हूँ, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चलो ठीक है,
फिर भी आप नहीं समझ रहे हो एक बात, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, और वो आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही गंदा रिजल्ट देगी। उसके बाद पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स जो है वो मुझे क्वेरी सेंड कर रहे हैं, उनको रेगुलरली ऐसे क्वेरी के आंसर भी मिल रहे हैं। आप देख रहे हो एक चैप्टर ही है पूरा ये बुक के अंदर, वो भी मैंने बहुत ये 51 से स्टार्ट किया था, फिर भी आप देखिए इतना सोल्यूशन हुआ है। तो still some students are not giving answers. That's why I feel you are copying. I'm not saying everybody, but yes, some of the students are copying. क्लासरूम पे असाइनमेंट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो है जस्ट सेंडिंग मी फॉर द शेक ऑफ मी, मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि इसका असाइनमेंट आ गया। ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो फेज़ में से आप पास हो रहे हो वो फेज़ में मैं बहुत सालों पहले पास हो चुकी हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ वो सब बंद कर दीजिए। ये दिस 3 चैप्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई तो नहीं अटेम्प्ट होगा आपके आपसे एग्ज़ाम में, देख लेना आप।